Hello everyone. Welcome to PTE Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 40th video in this series. It means that we have already discussed 39 real exam questions जो students को exam में आए हैं, and then we discuss the tips and tricks along with the strategies how to solve them. First things first, now PT is accepted in UK, so if you want to study, work or settle in UK, you can do it through PT, and 90% of Canadian universities now accept PT Academic, and a new test which is PT Home has been started, which is for family visas in UK. My name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT, and in this video series we discuss the tips, strategies, right? So that you can also achieve your target score, especially in reading, because with our strategies, a lot of students are able to achieve their target score in speaking, writing and listening. Reading में थोड़ी सी आपको अपनी effort use करना होता है. For that you need to know your grammar, your vocab must be strong, especially if you are looking to achieve 8 bands, okay? And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. Now PT reading is of 32 to 41 minutes and it is not scored out of 90. जो PT का reading module है, that is scored out of 47 marks only, okay? It has 5 question types and today's topic, which is reading filling the blanks, shortcut में हम इसको RFIB कहते हैं. RFIB is your second last question type. This is the real PT reading scoring where you can see RFIB contributes 15 marks. So if you get 5 questions, then you will have them of 3 marks each. Okay. Now, what is our reading filling the blank strategy? Our reading filling the blank strategy is that you have to solve your reading filling the blanks within 2 to 2.5 minutes. Up to 2.5 minutes के अंदर क्या आप वर्ड्स के सारे मीनिंग समझ सकते हो? Can you read all the words? The answer is no. You cannot understand the words, meaning, context in 2 minutes. So what you have to do? You have to do the skimming because skimming is very important if you want to achieve your target score. And those students who take coaching from us online or in institute coaching, we teach them, we tell them the importance of skimming. Now, this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this and then we are going to discuss it. Okay. So first of all, we skim it. We skim it for the gist कि एक central idea या theme क्या है इस RFIB का. Then we see the tone. Tone कौन सी यूज हो रही है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है और एकेडमिक टोन है. और उसके साथ टेंसेस कौन से यूज हो रहे हैं? पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है. Along with that, then in the second step, we do the parts of speech classification of options because it is very important. बहुत बार आपके ब्लैंक सिर्फ इन्हीं बेसिस पे सॉल्व होते हैं कि आपको अगर पता हो आपको एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, प्रोनाउंस यूज करने हैं, नाउन्स यूज करने हैं या वर्ब आएगी वहां पे. And all this thing we teach in detail in our grammar course for our online as well as in institute students. So let's get started with the skimming. Critical thinking involves looking at something you may have seen times and examining it from many different something and perspectives. It involves going beyond the something or beyond easy to seek something understanding and rare. It involves at common issues with uncommon eyes, known problems we knew, skepticism, everyday conflicts with probing something, and daily challenges with greater attention to detail. Okay, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में. ओके, अब यहाँ पे स्केप्टिज्म मतलब डाउट. आप किसी चीज के लिए स्केप्टिक हो मींस आप डाउटफुल हो उस चीज के लिए, आप उस पर डायरेक्ट एकदम विश्वास नहीं करते हो. सो यहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हो, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है.
राइट, यहाँ पे भी इन्वॉल्व, फिर आप दोबारा से इन्वॉल्व बताते हो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। छोटा ब्लैंक है, इजी लग रहा है, लेट्स सी। सेकेंड स्टेप नाउ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्यूज। व्यूज क्या है आपके यहाँ पे, एज अ नाउन यूज हो रहा है और प्लूरल यूज हो रहा है। क्यूरियोसिटी अगेन नाउन, न्यू, न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज। सो न्यू क्या है आपका, एडजेक्टिव। आइडियाज नाउन है एंड प्लूरल है। सॉल्यूशंस भी नाउन एंड प्लूरल है। एंगल्स भी नाउन और प्लूरल है। ऑब्वियस आप एज ए वर्ब कह सकते हो। ट्रूली जैसे हम कहते हैं यूअर्स ट्रूली, राइट, वहां पे भी आप उसको एज अ एडवर्ब कह सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी द आंसर, द फर्स्ट आंसर। अब पैरेललिज्म से एक कंसेप्ट होता है पैरेललिज्म, व्हाट इज दैट कंसेप्ट? एंड से पहले वाली फॉर्म और एंड के बाद वाली फॉर्म सेम होगी। सो यहाँ पे अगर आप हेल्पिंग लिख रहे हो तो यहाँ पे आप ईटिंग लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लव हेल्पिंग एंड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। ओके, सो यहाँ पे दोनों आईएनजी और आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज नोन एज पैरेललिज्म। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट एंड पर्सपेक्टिव्स, अब यहाँ पे प्लूरल है, राइट। पर्सपेक्टिव्स क्या है आपका, नाउन है, प्लूरल नाउन। सो अब आप बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो जो प्लूरल नहीं है एंड नाउन्स भी नहीं है। दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब आपके पास ऑप्शंस हैं व्यूज, आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एंगल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिकॉज दे से सर डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स भी हो सकता है, डिफरेंट व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स। बट बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर व्यूज आंसर है इसका, पर क्या व्यूज आंसर हो सकता है इसका? द आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता? सी, आइडियाज बहुत कम या सॉल्यूशंस बहुत कम स्टूडेंट्स चूज करते हैं, राइट। कंटेक्चुअली भी हमें फिलअप करके देखना होता है। व्हाट दे सिलेक्ट इज आइदर दे सिलेक्ट व्यूज और एंगल्स। अब एक चीज समझना, हम व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स बात करते हैं बट व्यूज और पर्सपेक्टिव एक ही बात होती है, राइट। पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपका व्यू उस चीज के बारे में, आपकी सोच उस चीज के बारे में। तो कोई तुक बनेगा यहाँ पे आपका लिखना डिफरेंट व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स, आप एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो? द आंसर इज नो। So what option is left is contextually जो fit बैठता है, that is different angles and perspective। उसको multiple angle से देख रहे हो, multiple perspective से देख रहे हो। So we are going to select the answer as angles. Okay. Now it involves going beyond the something or beyond easy to seek। अब again यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है, जैसे एंड में हम पैरेललिज्म करते हैं वैसे ही और की पैरेललिज्म भी हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे अब कॉनोटेशन देखिए, कौन सी कॉनोटेशन चल रही है, पॉजिटिव। इजी, इजी से रिलेटेड सिनोनिम कौन सा है यहाँ पे आपका? सेकंड थिंग, सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आ सकता। तो आपने व्यूज हटा दिया, आइडियाज, सॉल्यूशंस हटा दिया। ओके, बियॉन्ड द क्यूरियोसिटी, क्या क्यूरियोसिटी सिनोनिम है इजी का? नहीं, वो तो अलग बात है। क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा। इजी मतलब आसान। न्यू एंड इजी, नई चीज इजी है या नहीं है कैसे पता हो सकता है? नहीं पता हो सकता। सो ऑब्वियस, राइट, द आंसर ओवर हियर इज ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब जो पता है, ऑब्वियसली जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, फॉर ग्रांटेड चीजें इजी होती हैं। इट इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, की मतलब जो आपको लगता है कि ये ऐसा ही होने वाला है उसके पार जाके देखना, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियस। अब टू सीक सम अंडरस्टैंडिंग एंड रेयर समथिंग। अब अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, ये आंसर इजीली सॉल्व हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? स्टूडेंट्स कहते हैं सर आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब हो सकती है। द आंसर इज नो, दिस इज नाउन। ओके, रेयर क्या है? एडजेक्टिव है, जैसे रेयर फिनोमेना, रेयर थिंग। सो अब नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव फिल करना है, यहाँ पे एक नाउन फिल करना है। सो लेट्स सी आपके पास कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। व्यूज एडजेक्टिव है, नहीं है। क्यूरियोसिटी नहीं है। न्यू एडजेक्टिव है, आइडियाज नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं है, ट्रूली एडजेक्टिव नहीं है। सो आपके पास एक ही ऑब्जेक्टिव है जो आपका यहाँ पे फिट होता है, चाहे आपको समझ आए ना आए, पर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे ये फाइंड आउट कर लिया, मेरा यहाँ पे एक ही एडजेक्टिव फिल होगा विच इज
new. So you are going to select that new. अब आपको यहाँ पे क्या फिल करना है? नाउन फिल करना है, राइट? अब न्यू अंडरस्टैंडिंग बनानी है किसी चीज के बारे में, और रेयर क्या होंगे? रेयर व्यूज हो सकते हैं, नहीं, सोच के बारे में थोड़ी है, राइट? रेयर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कैसे रेयर हो सकती है? आइडियाज, यस, स्टूडेंट्स कहते हैं सर आइडियाज रेयर हो सकते हैं, बट यहाँ पे आप आइडिया क्या है? बेसिकली एक सोच, राइट? आप उस चीज का आइडिया नहीं है, उसके बारे में आपको पता नहीं है, पर आप तो यहाँ पे पता कर रहे हो उस चीज को, राइट? सो इसलिए आइडियाज नहीं हो गए. द ओनली आंसर विच फिट्स इज solutions and rare solutions. Okay, right? तो truly तो वैसे नहीं हो सकता था, which is not a noun. So आपका जो आंसर है, it's going to be solutions. अब again, let's see and now, क्या आपको ये सारे words पढ़ने की जरूरत है? The answer is no. Remember, blank से तीन चार words पहले और blank के तीन चार words बाद में. Those are important. Everyday conflicts with probing. Probing क्या होती है? बेसिकली एक प्रोबिंग का मतलब क्या है? जो आप कुरेद कुरेद के पूछना, कि मतलब बार बार पूछना, उस चीज को हम कहते हैं प्रोबिंग. जब आप किसी चीज को प्रोब करते हो बार बार. सो प्रोबिंग क्या है आपका? एज एन एडजेक्टिव है. ओके, अब आपको यहाँ पे क्या फिल आउट करना है? नाउन फिल करना है. ओके, तो अब यहाँ पे प्रोबिंग व्यूज होगा, क्यूरियोसिटी होगा, या आइडियाज होगा? ट्रूली तो आपका नाउन नहीं है. और सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप आइडिया लगा सकते हो. देखिए, विद न्यू स्केप्टिसिज्म, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर चल रहा है. सेम चीज पैरेललिज्म में कन्फ्लिक्ट्स विद प्रोबिंग क्या होगा? यहाँ पे समथिंग विच इज सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे स्केप्टिज्म है, सिंगुलर है. प्रोबिंग भी मोस्ट प्रोबेबली पैरेललिज्म के बेसिस पे सिंगुलर ही होगा. तो आप व्यूज और आइडियाज को भी एलिमिनेट कर दोगे. तो आपका आंसर क्या है? क्यूरियोसिटी, राइट? समझ आए ना आए, बट ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे वी हैव सॉल्व्ड दिस एंड ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. So what is our reading filling the blank strategy now? So our strategy is based on context, lexical resource, and grammar. In context, first of all, you had seen skimming. Skimming is very important. Then we solve blank sometimes on the basis of forward reading, backward reading, and tone. For lexical resource, collocations are important, phrasal verbs are important, and vocabulary. And vocabulary is something which we build over time. Like you have seen, आज आपको मैंने दो तीन example skepticism है, and we keep learning new words in every lecture of this series. And for grammar, we have a complete free grammar course for our students, online students as well as in-institute students, where we teach them about parts of speech, subject verb agreement. आज आपने देखा parts of speech के basis पे आंसर सॉल्व हुआ कि वो adjective था new, right? अब जो subject verb agreement, skepticism वाला जो last blank था कि singular use होगा, that is based on the basis of subject verb agreement. Prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules and sentences. All this is approximately 30 lectures grammar course, and it's very important not only for your reading but also for your writing and listening also, because grammar is very important. Okay, and remember, you just have 2 to 2.5 minutes, and in first 30 to 60 seconds you have to skim the content, and then you can find the answers based on the grammar rules as well as process of elimination. The strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see the scores of our students who have achieved their target score in this week. And these are some of our recent success stories where students have achieved 90, 87, 86, 82, 81. If they can achieve their target score with us, you can also achieve your target score. This is our WhatsApp number 8699121121. You can WhatsApp us if you want to take online coaching or in-institute coaching. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.